Good afternoon. Yesterday, in our last class, day before yesterday, we have discussed about GDP, that is Gross Domestic Product. What is GDP? Anyone tell? The value, no, okay, I am repeating, the value of final goods. The total value of the final goods are included in GDP. In our last, we have to discuss today about the sec, uh, jobs, employment. यस लास्ट में यही छोड़ा था ना हमने. हेलो, कैन एनीवन? यस सर। यहाँ पे ये आपने समझाया था। ओके, ये समझाया था. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट if a person is able to do the job but he is unable to find the job at a particular situation, that situation is known as unemployment. Have you gone through this PDF PPT? Have you gone through this? नो सर, मैं नहीं देखी। क्यों नहीं देखा बेटा? देख लेना अभी. हाँ, एम्प्लॉयमेंट वी आर. देख लूंगा। ओके, नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. इन प्राइमरी सेक्टर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 72% population was engaged in primary sector. That was the stage 1, which shows that the country is underdeveloped. If the most of the peoples are working in primary sector, means they still country is in the phase of, in the first stage. It is in the first stage, so it is underdeveloped country. People then shift to secondary sector. The moment of movement from primary sector to secondary sector, it means the country is developing. And third one, if the movement of the peoples or employment is there in the tertiary sector, it means that the country is developed. So still अभी भी जो हमारा 2011 सेंसस थे उसमें से अकॉर्डिंग 49% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी सेक्टर में अभी भी वो एंगेज्ड है, बट उसका जीडीपी में शेयर इट इज वेरी लेस कंपेयर टू टर्सरी सेक्टर. वहां पे percentage of population is less, but its shares in GDP is more. So shiftness is there from primary to secondary and tertiary sector. It is a good sign for India, but still lot of improvement is required because near about 50% of the population is still depend on primary sector. See, nearly half of the population is still employed in primary sector. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Means in video it was there. Similar shift नहीं था उसमें तीनों sectors में. The primary sector continues to be largest employer even now. अभी भी सबसे ज्यादा employment यानी सबसे ज्यादा लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं. Around 49% of the population is still employed in agriculture sector according to 2011 census. Census क्या होता है? What is census? Can anyone say? बार बार हमने डिस्कस किया है census. Census is a survey conducted by government regularly in the gap of 10 years. Yes, 10 years पॉपुलेशन का सर्वे होता है. उसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, एजुकेटेड है, डिफरेंट लेवल्स आर देयर इन दैट. जैसे एक तो पॉपुलेशन, टोटल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज देयर इन सेंसस. मेन थिंग उसका ये है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन पॉपुलेशन हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, दैट in that further how many children are there, how many senior citizens are there, how much working population is there. Apart from the literacy rate in women's, in men kitna hai literacy rate, that everything is counted. Primary health facilities is there. ये सारी चीज उसमें सेंसस में काउंट की जाती है. Though industrial output or the production of good went up more than 9 times during this period. It was there in the in what, in the video we have seen.
employment in the industry went by around just 3 times. The same applies to tertiary sector also. While the production in the service sector rose by 14 times, but employment कितना जनरेट हुआ उसका सर्विस 14 टाइम इंक्रीज हुआ पहले से, बट एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है, विच मीन्स काम कर रहे हैं बट यहाँ पे जितना उसमें इंक्रीज हुआ उतना 14 टाइम्स के मुकाबले उसमें जो सर्विस दी गई है लोगों को, जो एम्प्लॉयमेंट दी गई है वो बहुत कम है, नियर अब हाफ से भी कम दी गई है एम्प्लॉयमेंट. Some definitions are there again, that is disguise and employment already we know. जानते हैं सारे. Can anyone repeat this? Yes, anyone? It is a situation of underemployed where more number of people are employed than required. Hence, they appear to be employed, but there is hidden unemployment. It is Already found in rural and urban areas. it is found in urban areas. को हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो दूसरों को, जो बाकी अगर नहीं ध्यान है तो. सर, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, उसमें हमें लगता है कि कुछ पीपल एम्प्लॉयड है पर ऐसा होता नहीं है, वो प्रोडक्शन में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट ही है. और ये रूरल और अर्बन एरियाज में हाँ, दोनों में पाई जाती है. मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन अर्बन एरियाज इट इज फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. सो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि पर्सन इज एम्प्लॉयड, बट एक्चुअली ही उसका जो काम कर रहा है उसका आउटपुट में या प्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई एडनेस नहीं हो रहा है, यानी प्रोडक्शन किसी भी तरह से इंक्रीज नहीं हो रहा है. दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई, हिडन है. देखने में लग रहा है एम्प्लॉयड है, देखने में लग रहा है काम कर रहे हैं, बट उनका प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं है. सेकेंड वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज दैट? Already in 9th class it was discussed. When the people are working for less than their potential, जितना उनमें पोटेंशियल है, जितनी मीन्स एन इंडस्ट्री है उसमें 20 आदमी काम कर सकते हैं, बट 20 आदमियों को वहां पे ना लगाकर सिर्फ 10 आदमियों से या 15 आदमियों से काम करवाया जा रहा है ओवर टाइम लेके. दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी वहां पे जगह है, काम करवा सकते हैं, दे कैन पुट द मोर लेबर्स, they can keep more laborers, but they are not giving employment to that laborers. उनसे दूसरे लोगों से जो कर रहे हैं एक्चुअली में उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है. That is under employment situation. 20 फॉर एग्जाम्पल है, 20 लोगों की जगह पर 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट ना देके सिर्फ 10 या 15 लोगों से काम करवाया जा रहा है. तो एक्चुअली में वहां पे पोस्ट है, जगह है, बट उस जगह का फिल नहीं कर रहे हैं. That is under employment situation. Labor effect. As everyone appears to be working, no one is idle, labor works gets divided. Simple, ये इसी से disguise से आप relate कर सकते हो. कौन explain करेगा इसको? Yes, इकरा. सर, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में जैसे हमें लगता है कि वो एम्प्लॉय है पर्सन्स, पर वो एक्चुअली में होते नहीं है, वैसे ही लेबर इफेक्ट, मतलब हमें लगता है कि सब लोग वर्क कर रहे हैं, कोई भी ऐसे ही खाली फ्री नहीं है, बट लेबर वर्क फिर भी डिवाइड किया जाता है सब में. मींस ये लेबर इफेक्ट है. यस, लेबर इफेक्ट है. फॉर एग्जांपल कोई भी एक काम दिया, प्रोजेक्ट वर्क आपको देते हैं, जस्ट एन एग्जांपल इज देयर. प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ग्रुप बनाया 5 या 6 लोगों का. So, काम क्या हुआ, इक्वली डिवाइड होना चाहिए उसमें. श्योर है कि 6 लोगों का अगर ग्रुप बनाया तो इक्वली डिवाइड करके वो दिया होगा प्रोजेक्ट, बट एक्चुअली इन दैट मे बी 2 or 3 peoples or 4 or 5 peoples are working, 1 or 2 peoples are not working, बट एक्चुअली में जब उसका आउटपुट आता है तो वो सारे लोगों में डिवाइड होता है टोटल. हाँ, इतने 6 लोगों ने काम किया है. दैट इज द लेबर इफेक्ट. As everyone appears to be working, सब लोग वहां पे 6 के 6 लोग काम करते हुए दिख रहे हैं कि वहां पे बैठे हैं, बट एक्चुअली में मे भी ऐसा हो सकता है कि 6 लोगों में से 2 लोग काम ना कर रहे हो, वो सिर्फ बैठे हैं आराम से, ऐसे दिख रहा है, वो दिख रहे हैं काम करते हुए, बट उनका आउटपुट में कोई भी योगदान नहीं है. No one is idle, labor works get divided. Simple thing is there. Sir? Yes.
सर एक डाउट है, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है उसमें से ये भी तो पता लगा सकते हैं कि उसका पोटेंशियल मतलब उसका टैलेंट ये नहीं है, फिर भी उससे वो काम करवाया जा रहा है, हाँ होता है, तो मे ये बी, भी तो हो सकता है ना, हाँ होता है ना। सिर्फ टाइम के लिए नहीं, टाइम के लिए अलग नहीं, अलग मतलब अलग अलग टैलेंट। रीजन से टैलेंट्स भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज अ वैकेंसी बट दैट वैकेंसी इज नॉट फुल, और वो दूसरे लोगों से ज्यादा काम लिया जा रहा है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी समझ, सिंपल चीजें हैं कि एक कंपनी है, एक आपकी दुकान है या कुछ भी है, उसमें 10 लोग काम कर सकते हैं, बट 10 लोगों को काम आप सिर्फ 4 या 5 लोगों से करवा रहे हो, दैट सिचुएशन। बाकी जगह खाली है, उसमें अभी भी स्कोप है कि 5 लोग और आके उसको प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग कि जितने अगर ऐड किए जाएंगे तो वो ऐड करेंगे ही प्रोडक्शन में, क्योंकि अभी भी उसमें कैपेसिटी है, दैट विल बी इंक्रीज्ड, बट ड्यू टू मेनी सर्कमस्टेंसेस वो वहां पे उसको ऐड नहीं किया जा रहा है, दैट सिचुएशन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, कि आप देखते हो कि टीचर्स की वैकेंसीज कई बार आता है न्यूज में कि 5,000 से 7,000 सीट्स खाली हैं, फिर भी वहां पे नहीं लिया जा रहा है उनको, दैट इज वैकेंट। पुलिस की 20,000 30,000 सीट्स आर वैकेंट, बट उनको लिया नहीं जा रहा है, वहां पे कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है, दैट सिचुएशन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनके पास, गवर्नमेंट के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास रुपए नहीं है उनके देने के लिए, या वो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, सिचुएशन में भी डिफर। ओके, ओके सर। नेक्स्ट वन इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सिंपल है, कौन, कात्यान एक्सप्लेन प्लीज, क्या? सामने देख के, ये ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। Open employment. It is a situation when people have potential to work but are not able to find job. सिंपल चीज जो पहले Such से an हमने, employment is such an employment is clearly visible, जैसे आप, disguised or under क्या? जैसे हम क्या सर? अरे बता रहा हूँ, एक मिनट। आप लोग अपना एजुकेशन पूरा करके बाहर निकलोगे, स्टेप आउट करोगे टू फॉर योर बेटर फ्यूचर, आप लोगों के पास डिग्री भी है, सब कुछ है, बट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको जॉब की जरूरत है, यू आर स्टेपिंग आउट, और आपको उस समय पे जॉब नहीं मिलती है, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स इट इज क्लियरली विजिबल, आप चक्कर काट रहे हो, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, देखने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, बट आपको जॉब नहीं मिली है, दैट इज ओपन, खुली हुई है, सबको दिख रहा है, इट इज विजिबल, दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड, Disguised or underemployment. It is a situation of underemployment where more number of people are employment than required. Here, people are working for less than their potential. The unemployment is hidden. एक्सप्लेन। सर इसमें क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों को काम मिल मतलब दिखता है काम कर रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा है। काम काम मिल रहा है, दिखता है काम कर रहे हैं। बट काम एक्चुअली में आउटपुट नहीं दे रहे हैं वो कुछ भी, या अपने पोटेंशियल से काम कर सकते हैं बट वो काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन एम्प्लॉयमेंट। तो सर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्टॉप करने के लिए, गवर्नमेंट या फिर नहीं ले रही? लेती है स्टेप्स, बट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ये स्टेप्स पॉसिबल नहीं है। अभी जिसके पास टैलेंट है, जो काम करने के लिए रेडी है, उसको काम मिल जाता है, जो नहीं है उसको नहीं मिलेगा। कितने स्टेप्स लेगी गवर्नमेंट, दैट इज द एक्चुअल सिचुएशन। स्टेप्स आर टेकन, but person should be qualified to achieve that job, और इस फैक्ट को हम डिने नहीं कर सकते, इंडिया की सिचुएशन में तो खास करके नहीं कर सकते। दूसरी कंट्रीज होती है उसमें माना जाता है कि पॉपुलेशन रेशियो कम होता है, इन इंडिया वो था पहले, ऐसा ही था, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत कम देखने को मिलता था बिफोर 70s और 70 75 80s तक।
जितने भी जॉब्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स होते थे, उनमें से जबरदस्ती, आपके पेरेंट्स से पूछना, जबरदस्ती लोगों को लेके जाते थे गवर्नमेंट कि चलो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पहले वाले बोलेंगे कि हाँ, जबरदस्ती लेके जाते थे घर से, आर्मी में भी घर से लेके जाते थे, पुलिस में घर से लेके जाते थे, एसपी में घर से लेके जाते थे। आज लोग हम जाते हैं फिर भी हमें वहां से निकाल देते, बोले जगह नहीं है। सो सिनेरियो इज क्या करें हम? कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को काबिल बनाओ। दैट इज द सिचुएशन, आपके सामने यही है। इफ यू आर एबल, यू आर कैपेबल, आपको मिलेगी। अगर कैपेबल नहीं हो तो, अगर हमारे घर पे एक मजदूर भी काम करने आता है, अगर अच्छा काम करता है तो हम उसको दूसरी बार बुलाते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा है उस दिन, कम काम करता है या जितने हमारे एक्सपेक्टेशन से उससे कम काम करता है, तो दूसरे दिन हम उसको नहीं बुलाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो एवरीवन नीड्स वर्क। चेहरा या ये सारी चीजें देख के कोई भी खुश नहीं है आज किसी का भी। तो सर इससे कैपेबिलिटी, नेशनल इनकम भी तो कम होती है। नेशनल पर कैपिटा नेशनल इनकम, इनकम। यस, पर कैपिटा इनकम पे असर पड़ेगा उसका। तो पर सर शायद इसी वजह से इंडिया फिर पीछे है अभी भी, हाँ हाँ, उसी के कारण है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज। यस, डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। एक तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है। ऊपर से जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है हमारे इंडिया में। तो एक रीजन ये भी है कि पर कैपिटा इनकम हमारा कम है। और सिचुएशन हम कई बार नाइन्थ में भी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया की सिचुएशन क्या है कि नियर अबाउट 25, 26, 27 ईयर्स के बच्चे हो जाते तब तक वो कुछ नहीं करते। मेजरली पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। और फिर उनकी एक अच्छी खासी डिग्री आ जाती है उनके पास, एंड दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द लो वेजेस जॉब। वो घर पे बैठते हैं या दूसरा कुछ करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स वहां पे जो एफिशिएंसी थी, जहाँ पे वो इनकम जनरेट कर सकते थे, वहां पे उनके पास कोई भी इनकम जनरेट के सोर्सेस नहीं है। दे आर द बर्डन ऑफ पर कैपिटा इनकम, और नेशनल इनकम के ऊपर वो बर्डन के समान है। Solution of high dependence on primary sector for employment or to create employment। ये पहले इसका एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद में ये डिस्कस करते हैं। जस्ट सी द वीडियो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ है ये रहा। सर ये नरेगा वाला क्या था? What is हाँ, unemployment? आएंगे। Unemployment is a situation where people of working age are willing to work at the going wages but do not get jobs is known as unemployment. So what is the government doing about it? So the government introduced National Rural Employment Guarantee Act, that was 2005. Under this act, the people who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. It was started in the villages of 200 districts and has now been extended to villages in over 600 districts. 1/3 of the total work is reserved for women. So it has benefited the country immensely. Then it This Narega, do you remember in 9th class we have discussed on that? इस पे आंसर भी लिखवाया था। यस सर, Yes, सर sir. मनरेगा पे भी दिया यस था। सर। सर is नरेगा Okay. वाला क्या था? वही underemployment है is बेटा। a situation in which people are apparently working. That is, it appears to be working, but all of them work less than their potential. Say a graduate or a postgraduate and is doing the work of a bus conductor, then we will say that he is underemployed. See, a person underemployed, a person is a postgraduate। मैंने एक बार 9th में एग्जांपल दिया था आपको, यूपी का, उत्तर प्रदेश का दिया था। उसमें पीएचडी होल्डर्स, दे हैव गिवन द एग्जामिनेशन ऑफ डी ग्रुप पीपल, यानी सफाई कर्मचारी जो था उनका वो इंटरव्यू दे के आए थे। और उसमें वहाँ पे बताया भी था मैंने आपको कि वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल लिया था, उसमें गटर साफ करवाया था उनसे, सीवरेज साफ करवाए थे। डू यू रिमेम्बर दैट एग्जांपल? Yes, sir. दैट इज द सिचुएशन, दैट अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। वहां पे पोटेंशियल उसका ज्यादा है, इज अ पीएचडी होल्डर, उसने एजुकेशन की टॉप मोस्ट डिग्री ली हुई है, बट काम के लिए उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। काम कर रहा है डी ग्रुप का, जहाँ पे उसको 8th और 10th क्लास चाहिए। वहां पे अगर उसको जॉब मिलती है, दैट मीन्स वी आर इन द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपकी कैपेसिटी कहाँ है और आप जॉब कहाँ पे कर रहे हो, दैट सिचुएशन।
Then comes disguised unemployment. Disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed. In such a situation, more people are engaged in a work than required. Like in the agriculture sector, nearly 50% of the population is engaged, whereas this work can be done by 5% of the population. And 45% of the people are in villages and into agriculture because they don't have any other jobs. Even if this 45% comes out and get into some other work, all the work will comfortably go on in the country and the production will not decrease. See what he had told. 40-50% of the population is working in agriculture sector, बट जैसे हमने बोला डिस्गाइज्ड दे आर हेल्पिंग हैंड, उसके वो उसमें प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. तो स्टिल 45% भी अगर निकल जाते हैं तो भी हमारे देश में काम इजीली हो जाएगा और वो 5% लोग उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो दैट इज डिस्गाइज्ड, यानी 45% ऑफ द पीपल, हमारे अगर 45 लेते हैं तो 100 करोड़ की भी लेते हैं तो 45 करोड़ लोग निकल जाते हैं. यानी अभी भी 50-60 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं जो कि किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. जस्ट दे आर से ऐसा लग रहा है कि दे आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट उनका प्रोडक्शन में कोई भी योगदान नहीं है. अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज देयर. तो जैसा इकरा ने कहा था कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम पे असर पड़ रहा है, दैट इज ऑब्वियस, इट विल बी देयर. कि 45% अगर दूसरी जगह निकल के काम करे तो हमारी जो डेवलपिंग से है वो डेवलप नहीं आ सकती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सकती है. So this will be referred to as disguised unemployment, because in a developed country like US, 2% of the population is into agriculture. Why does disguised unemployment not help to enhance the productivity of the country? The reasons, let us sum up. More than half of the workers in the country are working in primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and the tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. If we move a few people out from agricultural sector, production will not be affected. See, and it is given more than half of the workers in the country are working in primary sector, mainly agriculture, producing only a quarter, means 25% of the GDP. सिर्फ 0.5% ऑफ पॉपुलेशन, 50 यानी 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से 50 लोग काम कर रहे हैं, बट जीडीपी में योगदान कितना है? सिर्फ 25%. रेस्ट सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर लेस देन 50% काम कर रहे हैं और वो 75% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं हमारा. दैट इज द सिचुएशन. और यही अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से इनको शिफ्ट करके लोगों को निकाल के, जो 50% लोग हैं उसको निकाल कर 10-20-30% भी निकाल कर अगर इनको शिफ्ट किया जाता है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, सो ये जो योगदान है 3/4 है, 3/4 है, ये मे बी और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. बट ये जो प्राइमरी सेक्टर वाला है उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा. जो प्रोडक्शन है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती. These people are disguised, unemployed, and are not productive assets for country. Now, how can employment be increased in both rural and urban areas? The answer is education. Education can create employment in urban as well as rural areas. Second one is the vocational training. कौन मानता है एजुकेशन कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? सर आई. ओके, I, आई कौन है? दूसरा आई कौन था? sir, I, ओके, sir, I, but not completely, हाउ कैन इट sir, क्रिएट? because, sir, education also plays a role in getting employment. Yes, getting employment, education plays a very important, very crucial role in today's world, because a high competition is there between the people. So we have a large number of population, high competition is there. If you are well educated, if you are well skilled, एजुकेशन का काम क्या होता है? इंसान की जो स्किल्स हैं वो अपने स्किल्स को पहचान सकता है थ्रू एजुकेशन. सो एजुकेशन हेल्प्स इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट.
वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो आपके वेकेशन में जो चलते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज है, जैसे कभी गर्ल्स के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स हुआ, टेलरिंग का कोर्स हुआ, कंप्यूटर का कोर्स हुआ, दैट कोर्सेस प्रधानमंत्री स्किल योजना चलती है जो यहाँ पे, उसमें भी यही स्किल्स सिखाई जाती है उसमें, जिसके कारण कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। Vocational training is a training in any particular skill. That skill will give him immediate job. Is vocational training, like a computer DTP course. So vocational training also create massive employment. Then promoting allied activities along with agriculture, something related to that, like horticulture. Horticulture is growing fruits and vegetables. Pisciculture is fish farming. That is developing fishes in tanks and then selling it. Many of them export in our country through financial assistance from banks. So banks have a role to play. Promotion of small scale industries and self-help groups. In our country, we have plenty of small scale industries, and that is an asset of the country. It is easy to start. Banking in rural areas to help in the growth of primary sector and ultimately create employment. The reason is these poor people in the rural areas take money from zamindars and they always remain in debt. So only when the banks intervene in these rural areas, the people will be helped out and they can become self-employed. सिंपल है, बैंक्स किस तरह से देंगे कि जो रूरल एरियाज में अगर जहाँ पे बैंकिंग है, बैंक अगर डेवलप करती है गवर्नमेंट, so the farmers who are who are taking loan from the zamindars or other peoples at higher rate of interest, वो डिपेंडेंस उनका कम हो जाएगा एंड दे गेट द लोन फ्रॉम द बैंक्स एट वेरी चीपर रेट्स, चीपर इंटरेस्ट रेट्स। सो क्या होगा, एंड कई बार ये भी होता है कि गवर्नमेंट वेव ऑफ देयर लोन्स, कई बार जैसे फसल खराब हो गई या कुछ हो गया तो गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू उनको वेव कर देती है, खत्म कर देती है, लोन माफ कर देती है। बट जमींदार वो लोन माफ नहीं करेगा, और एक तो ज्यादा ब्याज है तो उनका कभी भी वो हमेशा कर्जे के तले दबे रहते हैं। बट बैंकिंग सिस्टम अगर आ जाता है तो उसको टाइम भी मिलता है, टाइम पीरियड इज इंक्रीज, इफ एनी डिफिकल्टी इज देयर और या फसल खराब हो गई है तो गवर्नमेंट वेव ऑफ देयर लोन्स को खत्म कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं उसमें। Programs like NREGA and NRLM generate employment. यस कहते हैं, दैट इज नरेगा और मनरेगा। आप जो बोल रहे थे एम जी, दैट वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और गारंटी स्कीम है, तो उसमें सिर्फ महात्मा गांधी को ऐड किया गया है लोगो। So these are the ways in which employment can be increased in the country. Now coming to the next part, and that is we learn about organized and unorganized sector. Talking about organized sector, what is an organized sector? It is an enterprise that is registered by the government and follow rules and regulations. The terms of employment are regular and assured. And it is called organized because it follows the formal procedures. The good thing about this enterprise is that there is security of job, there is security of employment. There are fixed number of hours, and once that time is out, you can come out and go home. फिक्स नंबर्स ऑफ आवर्स मींस फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। फिक्स है, जैसे हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल वी हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। कितना, सुबह 7:30 से या 8 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक आपका, यानी 8 आवर्स यू हैव टू वर्क, आफ्टर दैट यू कैन गो होम। उसके बाद में आपके पास कोई भी काम नहीं है दैट। बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई भी 8 या 10 घंटे या ऐसा कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। And नहीं होता। listen, when I will share this video, you have to note down this organized sector and unorganized sector के जो points हैं. It will be helping you in the form of an answer. ये आप पूरा पूरा answer बना सकते हो इसका. Just you have to add a little wordings in it, and you can make the answer. It will come in 3 or 5 marks. Workers are paid overtime if they work, and they also get benefits such as payments during holidays, provident fund and pension on retirement, gratuity. Gratuity is a big amount that is given to a person once he retires from a job.
Generally, it is 20% of what he has earned. Then, medical benefits and safe working environment. Now, let's understand what is an unorganized sector. An unorganized sector constitutes small and scattered commercial units, and our country has plenty of which are outside the control of the government. There are no rules and regulations in the unorganized sector, and jobs here are low paid and irregular. Employment is not secure in this. So when I talk about unorganized sector, first of all, it is an enterprise not registered by the government. They have rules and regulation, but these are not followed. Terms of employment are not regular and no assured work. Employment is not secured, and workers can be asked to leave without any reason. There is no fixed number of hours, and they are not paid overtime. They also do not get benefits like payment during holidays, provident fund, gratuity, medical benefits, safe working environment, pension on retirement, and paid leave. So out of 475 million people employed in India, 82.74% of the people work in unorganized sector. Now, See, a very large data, 475 million people में से 82.7 for near about 83% peoples हैं ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं. वहां पे कोई भी उनके पास ऐसी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. और इसके सिचुएशन का हमने करंट सिचुएशन जो पेंडेमिक चल रही है उसमें हम इसका एक एग्जांपल देख रहे हैं कि वो जो मजदूर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं, वो इसी के कारण जा रहे हैं कि उनके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. दे आर नॉट गेटिंग पेड लीव्स, दे आर नॉट गेटिंग हॉलीडेज, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं है उनके पास, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है उनके पास. ये सारे रीजंस हैं उनको जो वहां से वो शिफ्टनेस चल रहा है उसका. we are clear why people like to work in organized sector. The reason is workers. और आप लोगों का भी अभी मे बी यू आर ऑल्सो क्लियर विद द विजन कि आप लोग आने वाले फ्यूचर में जब स्टेप आउट करोगे अपने फ्यूचर के लिए तो कौन सा सेक्टर आप लोग चूज करना पसंद करोगे, वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, वो आप लोगों को डिसाइड करना है. मैक्सिममली जहां तक मैं सोचता हूँ कि सब लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पसंद करेंगे. मे बी कुछ हो सकते हैं जो सोचते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, बट security means that is organized sector. Enjoy security of employment and are expected to work only a fixed number of hours. Workers get several benefits from the employers and they get paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, pension on retirement. Workers get medical benefits and also enjoy facilities like safe working environment and clean drinking water. Why are workers exploited in unorganized sector? The reason is employment opportunities in organized sector have been expanding slowly. So there are very few job opportunities. एक इसका कारण ये है कि इन ऑर्गेनाइज सेक्टर the retirement age is 60. So till the person is not retiring, another person is not getting chances. बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर 60 साल की उम्र में आप एक सोचो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आदमी काम कर रहा है वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वो स्टे कर पाएगा. 60 साल में इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसको वहां से जॉब से निकाल दिया जाता है पहले ही, बहुत पहले 45-50 उससे एज से ऊपर जब शरीर काम करना कम कर देता है तो कोई भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वो उसको रखेगा नहीं. बिकॉज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर people only wants more work from the worker. उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और ये सारी चीजें नहीं देखते हैं. बट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल द एज ऑफ 60 years अगर वो हेल्दी है, वो काम कर सकता है, तो एट द टाइम ऑफ 60, 58 and 60 वो रिटायर होगा, उससे पहले वो रिटायर नहीं होता है. सो दैट इज द डिफरेंस कि 60 के बाद में जब तक वो 60 साल का नहीं हो तब तक वो रिटायर नहीं हो रहा, और रिटायर नहीं होगा तब तक दूसरे को जॉब नहीं मिल रही है, वो पोस्ट नहीं मिल रही है. एंड अदर थिंग इसमें जो पोस्ट है वो भी बहुत ही ग्रेजुअली या बहुत ही धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रही है. जो शिफ्टनेस होना चाहिए वो शिफ्टनेस यहाँ पे नहीं आया है. Organized sector enterprises are found in the unorganized sector. And the reason behind that is to evade the tax, refuse laws that protect laborers,
Since 1990, large number of workers are losing jobs in the organized sector. Now, let's come to the final part of the chapter and understand the difference between public sector and private sector. Economic activities on the basis of ownership. So let us understand the difference between public sector and private sector. In the public sector, the ownership of the assets and delivery of services lies with the government. The motive behind running a public sector is welfare of the public. Say, for example, the post office and even the railways. They come under public sector. Then it is private sector. Here, the ownership of assets and delivery of service lies with the private individuals or companies. So in simple words, public sector is owned and managed by the government. Private sectors are owned and managed by the private individuals. Here, what is the motive? The motive is profit. We have all heard of Tatas and Reliance. They are examples of private sector. Now, why is it important for public sector to focus on some areas? Several things are needed by society, but which the private sector will not provide at a reasonable cost, like construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, and irrigation. Some areas need spending large amount of money, which is beyond the capacity of private sector. Collecting money from thousands of people who do use these facilities is not easy, and it is done by the government. Even if private sector do provide these things, they would charge a high rate for the use. So the government has to undertake heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. Now, there are some activities by which government has to support the private sector, or they may not continue the production or business. Say, for example, government produces and supplies electricity at a rate which these industries can't afford. Government bears a part of the cost, buys wheat and rice from farmers at fair price, stores it in godown, and sells at lower price to consumers through ration shops. When the private company, जैसे एक बार मैंने एग्जांपल भी दिया था, गुजरात इन कच्छ इंडस्ट्रीज आर सेटअप, 5 साल के लिए उनको टैक्स फ्री दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई और ये सारी फैसिलिटीज उनको गवर्नमेंट दे रही है. व्हाई इट इज? बिकॉज वहाँ पे उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट हैड टू डू समथिंग. वहाँ पे अगर एक इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है. मीन्स वहाँ पे लोग आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज चाहिए, सारी चीजें दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एट चीपर रेट टू द इंडस्ट्री. इट इज कॉल्ड सब्सिडी. कई चीजों में सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है. इन कच्छ जैसे यहाँ पे आफ्टर अर्थक्वेक गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि कच्छ को डेवलप करने के लिए क्या करना है, तो इंडस्ट्रीज का आना जरूरी है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन दैट. बहुत सारा एरिया है ऐसा है जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, पानी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट गवर्नमेंट इज टेकन स्ट्रेटेजी दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे किया जाए. अब इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में आना कोई भी नहीं चाहेगा. जैसे हमने वो पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें 9 चीजें दी गई थी. That factors, वो factors किसको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे? That government have to provide to the private individuals. So they are attracted. एक अभी वहाँ पे लैंड सबसे पहला, तो लैंड गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट उनको चीप रेट्स पे लैंड प्रोवाइड करवाएगी, सस्ते दामों पर लैंड प्रोवाइड करवाएगी. एक चीज दे दिया. टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट चीपर रेट्स, वाटर फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोवाइड करवाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन कच्छ द स्टेप वाज टेकन कि नेक्स्ट जैसे ही कंपनी स्टार्ट करती है प्रोडक्शन, आज बनकर तैयार हो गई और आज से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, आज से प्रोडक्शन स्टार्ट होने से 5 साल तक उसके प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना है. मींस 5 ईयर टैक्स फ्री. सो अब यहाँ पे क्या होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लालच आता है कि 5 साल अगर मेरे को गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, अपार्ट फ्रॉम दैट all the facilities is government is providing at cheaper rates. So means there is a scope कि हम वहां पर जाएं और वहां पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा. That is the example कि यहाँ पे आपका जो मुंद्रा पोर्ट सेटअप हुआ है वो उसी का एक एग्जांपल है. आफ्टर अर्थक्वेक वहां पे दिया गौतम अदानी को बहुत सस्ते दामों पर जमीन को प्रोवाइड करवाया गया.
आप वहां पे चले जाओ, लखपत तालुका में नारायण सरोवर कोटेश्वर के आगे यहाँ पे पांद्रो, ये सारी चीजें, सांगी सीमेंट प्लांट है, ये सारी चीजें दैट इतनी दूर सांगी सीमेंट प्लांट आपके यहाँ से भुज से नियर अबाउट 260 किलोमीटर, कहाँ पे वहां पे जस्ट इतनी दूर जाकर एक प्लांट सेटअप करना, सीमेंट का प्लांट सेटअप करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वहां पे क्यों सेटअप हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको चीप रेट्स पे जमीन प्रोवाइड करवाई गई, सारी फैसिलिटीज उसको वहां पे प्रोवाइड की गई, देन ही एस्टेब्लिश। तो 5 साल के लिए उनको कोई टैक्स नहीं देना, यानी जितना भी बचेगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, मीन्स दैट इज द प्रॉफिट। सो अर्न प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला वहां पे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ, सारी चीजें फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगी, मीन्स द डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करवा के, सारी चीजें चीप रेट्स में प्रोवाइड करवा के गवर्नमेंट उस एरिया का डेवलपमेंट करना चाहती है। बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ कच्छ के रण का आपको, कि यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को सेटअप किया गया। पहले यहाँ पे कोई भी नहीं पूछता था, कच्छ कोई नहीं आता था, अभी विदेशों से लोग आके यहाँ पे बैठते हैं। टेंट हाउस के लिए 35,000 40,000 रुपीज देते हैं, पे करते हैं वहाँ पे एक टेंट में रहने के लिए। सो दैट इज द टूरिज्म इंडस्ट्री। अब वहाँ के लोगों को, अब मैं बार बार मैंने बोला था, जहाँ पे लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती, वहाँ के लोग इंग्लिश अच्छी तरह से बोलते हैं, कच्छ के लोग, उस एरिया के लोग। दैट इज द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टुक अप बाय द गवर्नमेंट। ये इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के कि उस एरिया का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। दूसरा है बाय वीट्स, जैसे एमएसपी, फेयर प्राइस सोप्स, मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताया था 9th क्लास में। गवर्नमेंट प्रीवियसली अनाउंस, जैसे फसल उगानी होती है, उगती है, उस समय ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आपकी फसल का ये रेट पे आपके गवर्नमेंट आपसे लेगी, तो उस रेट पे आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो। दैट द फार्मर नोज प्रीवियसली कि मेरी ये फसल होगी, इसका ये रेट है, इतना रेट तो मेरे को मिलना ही मिलना है, इससे ज्यादा होगा पर इससे कम नहीं होगा। एंड सेल्स इन द फेयर प्राइस सोप्स और ये सारी चीजें, राशनिंग सोप्स और इनके थ्रू कंज्यूमर्स को वो पहुंचाती हैं, जिससे सबको फायदा हो, किसानों को भी फायदा हो, एंड द पर्सन्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन उनको भी फायदा हो, दे कैन गेट द राशन और गुड्स एट चीपर रेट्स। अभी पेंडेमिक में नॉट जस्ट ओनली बीपीएल कार्ड बट एपीएल कार्ड वालों को भी 3 महीने के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज प्रोवाइड करवा रही है। अगर आपने सुना होगा न्यूज में भी, इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में, अगले 3 महीने के लिए गवर्नमेंट एपीएल, हम जिसमें आते हैं एपीएल कार्ड, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इन राशन की दुकानों पर से अनाज प्रोवाइड करवाया जा रहा है। Then providing health and education facilities is also government's primary responsibility, like elementary education, safe drinking water, housing facilities Elementary education means primary education. for poor, food and nutrition facilities. To conclude, government will also take care of poorest and the most ignored regions of the country through increased spending in such areas. So with this, I conclude the chapter. Thank you. Anything is there in that video you are not understood about the primary sector, secondary sector, tertiary sector, organized, unorganized sector, and that private and public sector? Anything is there? Anyone? Hello? सो गए? ना सर। एनीथिंग इज देयर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो ऐसा? इकरा? सर आ गया समझ। ओके, सो आई एम शेयरिंग विद यू, आपका कल का काम होगा दिस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर किए मैंने पहले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे शेयर हो गए। यू गॉट दैट क्वेश्चंस? यस सर। सो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आज ही शेयर कर दूंगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी सोशल साइंस की। सो फॉर टुमारो मैं लिख के भेजूंगा कल का वर्क, टुमारो देयर विल नॉट बी सोशल साइंस क्लास, एंड स्टूडेंट्स प्लीज solve the NCERT solutions in a notebook, ये करके आज ही मैं शेयर कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट
जितने भी हैं चैप्टर के पीपीटी है एंड पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिवीजन और ये सारी चीजें मैं आज फिर से शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू दैट, लिख लेना। कल आपकी सोशल साइंस क्लास नहीं होगी, अगर कोई भी चेंजेस होता है 99.9% नहीं होगी, कुछ भी होगा तो मैं आपको वो रिपोर्ट कर दूंगा। बाकी मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आज शेयर कर रहा हूँ, दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नोटबुक। ओके सर। थैंक सर यू। एनजीओ ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेटा, वो ऑर्गेनाइज्ड में भी आते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो रूल्स किस तरह के फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। मेजरली जितने भी बड़े एनजीओज होते हैं दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, छोटे एनजीओज होते हैं जो छोटे छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय। बाय सर, हैव अ स्वीट डे। ओके बेटा।